So welcome to the students. This is the new topic which I have taken today, that is shear center. ये बहुत important topic है आपका, and this is the new topic which is added now in the syllabus. तो आज इस टॉपिक के बारे में हम शेयर सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज अ शेयर सेंटर. बट बिफोर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द शेयर सेंटर, we must know the concept of the shear flow. Reason is shear flow that is related to the shear center, and to understand the concept of the shear flow, first we will understand that what is horizontal shear. You understand? तो ये आपका नया टॉपिक है. इस टॉपिक में हम आज शेयर सेंटर के ऊपर डिस्कस करेंगे. I think this topic that comprises of my two lectures. So in the first lecture, I will discuss about the shear center, shear flow and horizontal shear. Because ये आपका shear flow, इसके बारे में जानना किस लिए जरूरी है, क्योंकि shear flow that is related to the shear center. जब तक we will not understand that what is shear flow, we cannot understand the shear center. And for understanding the shear flow, we must know about the horizontal shear. You understand? तो horizontal shear के बारे में स्टार्ट करेंगे हम. horizontal shear and shear flow ये दोनों सेम चीज हैं. जहां से हम shear flow के ऊपर एकदम स्विच करेंगे. तो horizontal shear क्या है? Sorry. So as we have already discussed, you know about the vertical shear. आप vertical shear के बारे में जानते हैं. Suppose this is your beam. ये आपकी कोई beam है. This is your beam like this, right? और simply supported beam है. तो एक लोड J आपके पास, एक J है. This is your load like this, right? So this is your force P, P1, P2, P3. Vertical force is acting on the beam. तो जो आपका vertical shear होगा वो क्या होगा? Suppose ये आपका vertical shear होगा इस तरीके से. Suppose if we cut the section like this, so you know that तो अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन ड्रा करते हैं, सपोज इफ दिस इज द क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, या कोई भी क्रॉस सेक्शन लें, तो वर्टिकल शेयर फोर्स दैट डेवलप, जो आपकी वर्टिकल शेयर फोर्स जो डेवलप होगी यहाँ पे, इट विल डेवलप लाइक दिस, राइट. सो दिस इज द वर्टिकल शेयर फोर्स जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है. दिस इज in opposite direction of the load which are acting on the beam. So vertical shear के बारे में तो आपने पढ़ा है. You know the vertical shear. So what we have to study today, that is the horizontal shear, right? Vertical shear, you know, suppose when a vertical load is a transverse load is acting on the beam, then the shear force which develop, that is called the vertical shear force in that case. But here we have to study the horizontal shear force. So let us understand कि horizontal shear force आपकी क्या है. So this is the new thing. इसमें थोड़ा सा concentrate कीजिएगा. So let us say that I have taken the cantilever beam of I section. ये cantilever beam मैंने लिया है जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या है? I section क्रॉस सेक्शन है. This is the side view, ये आपका बीम का साइड व्यू है, and this is the cross section I section, and this is your cantilever beam, and the load is acting at its free end. You understand?
So we are studying here, we have to discuss about the horizontal shear. Consider a very small length on this beam में मैं क्या करता हूं, एक small length जो है इसका कंसिडर कर लेता हूं. यू अंडरस्टैंड. सो दिस इज यू कैन से, इसको थोड़ा एलेबोरेट करके बना लेते हैं हम. ये स्मॉल लेंथ है. टू शो यू इसको मैंने थोड़ा एलेबोरेट किया. एंड ये आई सेक्शन है तो इसलिए एक सामने से देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा. यू अंडरस्टैंड. तो दिस इज ए एंड बी. The small length, suppose it is of dx ले लीजिए. इसका dx जो है इसका लेंथ है. We have taken the small element here. So this is your section A and this is your section B. You understand? What I have done, I have just taken, consider the cantilever beam and a small portion of this I have taken in the beam here, which is you can say have the length dx. So I have enlarged this portion here so that you can understand the things correctly. Understand? You understand? तो ये आपका ऊपर वाला पोर्शन है, ये आपका नीचे वाला पोर्शन है. बिकॉज दिस इज आई सेक्शन. तो आई सेक्शन में अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो ये आपको दो जो फ्लेंजेस हैं ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा. यू अंडरस्टैंड दिस? So here we are discussing about the horizontal shear. Now understand, मैं ये वाला ऊपर वाला पार्ट लूंगा. I will take this part only, means ये वाला part. This part I will take. Understand this? Its area, you can say जो इसका area है, small area, this is equal to dA. Is the small area of this. So as there are the two sections A and B, so it means that bending moment, there will be the bending moment at the section A and bending moment at the section B. यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका सेक्शन A के ऊपर बेंडिंग मोमेंट P into this length, और अगर B की बात करें तो P into this length. This is the bending moment at section A and the bending moment at section B. So you can say that section A के ऊपर bending moment होगा इस तरीके से and section B के ऊपर bending moment ऐसे होगा. तो इसमें ये ड्रा कर लीजिए. section A के ऊपर bending moment like this M and section B के ऊपर bending moment M प्लस. अब देखिए, ड्यू टू दिस लोड P देयर विल बी द बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन A एंड द बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन B. बट द बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन B दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन A. यू कैन सी फ्रॉम हियर बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन B दैट इज ग्रेटर देन द बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन A. तो हम कह सकते हैं m plus dn is the bending moment at section B. जहां तक क्लियर है चीजें? What I have done, I have just taken the cantilever beam and very small part I have considered here. इसको मैंने enlarge किया है. We have got two sections A and B. तो बेंडिंग मोमेंट के ऊपर, सेक्शन A के ऊपर और सेक्शन B के ऊपर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? एक्ट करेगा ड्यू टू दिस लोड P. ये जो आपका लोड P है, ड्यू टू दिस द बेंडिंग मोमेंट विल डेवलप एट सेक्शन A and section B, and bending moment at section A that is less and bending moment at section B that is greater. You understand? जहां तक चीजें क्लियर है. अब now due to this bending moment, understand step by step. पहले बेंडिंग मोमेंट जहां पे डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ? ड्यू टू दिस लोड P ऑन द कैंटिलीवर बीम. बेंडिंग मोमेंट जो B सेक्शन B के ऊपर था दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन A. एंड ड्यू टू दिस बेंडिंग मोमेंट, ड्यू टू
this bending moments at section A and B, क्या होगा? द बेंडिंग स्ट्रेसेस, इस बेंडिंग मूवमेंट के कारण क्या होगा? द बेंडिंग stresses will develop on section A and section B, will develop on section A and B. You understand? तो बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। अब जो बेंडिंग स्ट्रेसेस होंगी, अगर सेक्शन ए के ऊपर, इफ आई से एट सेक्शन ए, अगर सेक्शन ए के ऊपर आपका बेंडिंग स्ट्रेस अगर सेक्शन ए के ऊपर आपका सिग्मा है, तो बेंडिंग at section B, what is that bending stress? That is more than that of section A. So at section B, you can say at section B, bending stress क्या होगी? Say this is more than that of the bending stress at section A. तो जी मैं कह सकता हूं कि बेंडिंग स्ट्रेस जहां पे होगी, बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा प्लस डी सिग्मा। यू अंडरस्टैंड दिस? जहां तक चीजें क्लियर हैं, क्योंकि आपका बेंडिंग मोमेंट जो है वो सेक्शन बी के ऊपर ज्यादा है एज कंपेयर टू द बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन ए। सो ड्यू टू दिस बेंडिंग मोमेंट व्हाट हैपेंस, there will be development of the bending stresses there at section A and B, and bending stress at section A that is less than that of the bending stress at section B. So say कि अगर मैं bending stress at section A, if it is sigma, then the bending stress at section B, this is equal to sigma plus d sigma. You understand? जहां तक चीजें क्लियर है? So if dA is the small area, I am just taking this only this one of the portion. I am not taking this, सिर्फ इसी पोर्शन के ऊपर जो मैंने शेडेड किया है, इसी के ऊपर ही मैं ये आपका हॉरिजॉन्टल शेयर का इक्वेशन ड्राइव करूंगा, और उसके बाद देन यू अंडरस्टैंड दैट किस तरीके से ये सारा शेयर फ्लो होगा, हॉरिजॉन्टल शेयर होगा। सो आई एम जस्ट टेकिंग ओनली दिस पार्ट, यू अंडरस्टैंड, विच द पार्ट विच इज शेडेड। अगर इसका एरिया आपका dA है, तो फोर्स जो होगी, फोर्स आपकी सेक्शन ए के ऊपर, फोर्स एट सेक्शन ए क्या होगा? स्ट्रेस इनटू एरिया, यही होगा, बेंडिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। तो सेक्शन ए के ऊपर बेंडिंग स्ट्रेस आपका सिग्मा है, सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा इनटू डी ए। ये आपका आ गया फोर्स एट सेक्शन ए। Now the force at section B, force at section B, so वो force at section B क्या होगा? Bending stress, that is sigma plus d sigma into dA. You understand? तो हमें कहां से हमने शुरू किया था? We have started from this. We have taken the cantilever beam. Load P is acting at its free end. Then we have considered a very small portion of the beam. Say its length is dx. Very small portion of the beam. उस पोर्शन को लेके ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, and then we will come to this entire beam. उसके बाद हम इस entire beam के ऊपर horizontal shear को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे। अभी जो हम horizontal shear
फाइंड आउट कर रहे हैं, आई एम जस्ट फाइंडिंग द हॉरिजॉन्टल शियर ऑन दिस स्मॉल पोर्शन ओनली। इस पोर्शन के ऊपर मैं हॉरिजॉन्टल शियर का के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। यू अंडरस्टैंड अप टू दिस पॉइंट? तो क्या होगा कि ड्यू टू दिस लोड P there will be the bending moment 12 at section A and section B, and you know from here, if you will see from here, कि bending moment at section B, because bending moment क्या होता है, load into distance, तो जो B का डिस्टेंस है जहां से वो क्या है, ज्यादा है, और A का जो डिस्टेंस लोड से है वो क्या है, कम है। यू अंडरस्टैंड? सो इट मीन्स दैट so bending moment of B, bending moment of section B, that is greater than that of the bending moment of section A. You understand? तो bending moment imbalance हो गया यहाँ पे, क्योंकि B के ऊपर जो bending moment था वो ज्यादा था, A के ऊपर bending moment आपका कम था। So due to this bending moment, what happens? Bending stresses आपकी develop हुई section A और B के ऊपर, and likewise जो बेंडिंग स्ट्रेस थी सेक्शन ए के ऊपर वो कम है एज कंपेयर टू द बेंडिंग स्ट्रेस एट सेक्शन बी। सो से एट सेक्शन ए बेंडिंग स्ट्रेस, इफ आई कंसिडर दिस सिग्मा, सो एट सेक्शन बी द बेंडिंग स्ट्रेस, दिस इज सिग्मा प्लस डी सिग्मा। यू अंडरस्टैंड? एंड देन आई हैव कैलकुलेट द फोर्स एट सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। यू अंडरस्टैंड? मैंने फोर्स कैलकुलेट किया कि सेक्शन ए के ऊपर कितना फोर्स है और सेक्शन बी के ऊपर कितना होगा, तो बेंडिंग स्ट्रेस इनटू एरिया, दिस इज द फोर्स। तो सिग्मा क्या है, सेक्शन ए के ऊपर स्ट्रेस था आपका सिग्मा इनटू डी ए, एंड फोर्स एट सेक्शन बी दैट इज सिग्मा प्लस डी सिग्मा इनटू डी ए, राइट? सो जहां तक चीजें आपकी क्लियर हैं सारी, राइट? अब देखिए, तो बेंडिंग जहां से आपने ये देखा, देयर इज द इम्बैलेंस ऑफ द फोर्स। जहां पे आपने क्या देखा, जहां पे आपने देखा कि जहां पे फोर्स का इम्बैलेंस हुआ है, क्योंकि फोर्स जो आपकी सेक्शन बी के ऊपर है दैट इज ग्रेटर, और जो फोर्स आपकी सेक्शन ए के ऊपर है दैट इज लेस। सो यू कैन से, अगर ये आपकी फोर्स है सेक्शन ए के ऊपर, तो इस तरीके से फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो टेंसाइल फोर्सेस डेवलप करेंगे यहां पे, लेकिन आपका जो सेक्शन ए के ऊपर फोर्स है वो क्या है, कम है, और सेक्शन बी के ऊपर फोर्स ज्यादा है। सो ड्यू टू दिस इम्बैलेंस ऑफ द फोर्स, ये जो आपकी इम्बैलेंस फोर्स जहां पे हुई, सो टू बैलेंस दिस फोर्स, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, जहां पे एक फोर्स एफ, जहां पे ये फोर्स डेवलप होगी। यू अंडरस्टैंड? अब फोर्स का डायरेक्शन इस साइड पे क्यों होगा, देखिए ये जो फोर्स आपकी इस डायरेक्शन जहां पे है एट ए, दिस फोर्स जहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो एट दिस पॉइंट एट सेक्शन ए द फोर्स इज लेस। ये जो इस साइड की जो फोर्स है, आप कह सकते हैं कि इस साइड की जो फोर्स है, ये वाली फोर्स, ये फोर्स आपकी क्या है, लेस है, राइट? और ये वाली फोर्स आपकी क्या है, बेंडिंग फोर्स क्या थी, ग्रेटर थी, ज्यादा थी। सो टू बैलेंस दिस फोर्स, जो हमारी फोर्स एफ जो एक्ट करेगी, दैट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि जहां पे फोर्स कम है तो हम इसी साइड के ऊपर फोर्स लगाएंगे, सो दैट इट विल बैलेंस द फोर्स। यू अंडरस्टैंड? ये जो वो आपकी फोर्स एफ है, ये आप जो आपने इस डायरेक्शन पे लगाया, दिस फोर्स इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल शियर। यू अंडरस्टैंड? इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, एफ को, ये जो आपकी फोर्स है एफ,
This force is called horizontal shear. You understand this? This force is called the horizontal shear. So you have understood the concept of the horizontal shear. कैसे डेवलप हुआ? horizontal shear आपका डेवलप हुआ क्योंकि जो इम्बैलेंस ऑफ द फोर्सेस डेवलप हुआ यहां पे, सेक्शन ए के ऊपर फोर्स आपकी क्या थी? बेंडिंग फोर्स लेस थी, और सेक्शन बी के ऊपर बेंडिंग फोर्स जो आपकी थी ज्यादा थी। यू अंडरस्टैंड? सो टू बैलेंस द फोर्सेस, ये जो आपकी फोर्सेस थी इनको बैलेंस करने के लिए, इन ऑर्डर टू बैलेंस द फोर्स, व्हाट हैपेंस, देयर विल बी the development of the another force in this you can say in this section, जहां पे फोर्स F डेवलप हुआ। कैसे डेवलप हुआ? क्योंकि इनको बैलेंस करने के लिए, और जो डायरेक्शन F की होगी वो क्या होगी? वो उस डायरेक्शन की तरफ होगी जिस डायरेक्शन पे आपकी फोर्स कम है। यू अंडरस्टैंड? जिस डायरेक्शन के आपकी फोर्स कम है। एंड इफ आई विल जस्ट कंसिडर दिस पॉइंट, ये जो आपका ए बी है, ये जो मैंने लिया स्मॉल, जहां पे देखिएगा कि एट सेक्शन ए के ऊपर, सेक्शन ए के ऊपर क्या है? सेक्शन ए के ऊपर आपकी फोर्स लेस है एज कंपेयर टू द सेक्शन बी। तो इस साइड के ऊपर आपकी फोर्स ज्यादा है, ये आपकी फोर्स ज्यादा होगी, और ये आपकी फोर्स जो थी कम थी। यू अंडरस्टैंड? तो इन दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए देयर विल बी ए हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स इन द सेक्शन, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विच इज लेस इन द मैग्नीट्यूड। यू अंडरस्टैंड? तो हम कह सकते हैं कि जे वाला पोर्शन ऊपर वाला लिया ना, तो कहने का मतलब जे फोर्स इस तरीके से ये फोर्स जो है आपके क्रॉस सेक्शन में डेवलप। यू अंडरस्टैंड दिस? जहां तक चीजें आपको सारी समझ आ गया, ये पोर्शन आपको समझ आ गया कि ये किस तरीके से आपका हॉरिजॉन्टल शियर क्या है, किस तरीके से डेवलप किया है। यू अंडरस्टैंड? नाउ इसको मिटा देंगे। ये स्मॉल पार्ट हमने यहाँ पे शो किया है, जहां पे फोर्स, ये स्मॉल पार्ट, ये फोर्सेस तभी बैलेंस होगी कि ये जो फोर्स F की वैल्यू है, हम देखिए कैलकुलेट करते हैं। यू अंडरस्टैंड? फोर्स F की वैल्यू वी विल कैलकुलेट। तो फोर्स F की वैल्यू करने के लिए हम सिग्मा Fx इक्वल टू 0 ले सकते हैं। वी विल टेक द समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल फाइंड दिस फोर्स। देखिए अब फोर्स F की वैल्यू, नाउ we will find the force F। अब फोर्स F को we have to find। जहां तक तो चीजें क्लियर थी कि हॉरिजॉन्टल शियर कैसे डेवलप हुआ। इम्बैलेंस ऑफ द फोर्सेस, कहां से इम्बैलेंस शुरू हुआ? पहले इम्बैलेंस शुरू हुआ आपका बेंडिंग मूवमेंट से। बेंडिंग मूवमेंट एट सेक्शन ए कम था एज कंपेयर टू द बेंडिंग मूवमेंट एट सेक्शन बी। तो ड्यू टू दैट जो आपकी बेंडिंग स्ट्रेसेस थी एट सेक्शन ए, दैट इज लेस देन द बेंडिंग स्ट्रेसेस एट सेक्शन बी।
and then we have calculated the forces. So ultimately the forces will also be less at section A and at section B. So in order to balance the forces, there will be the horizontal shear force here in this section to balance the forces. अब हम जो है फोर्स F की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. तो summation of horizontal forces that is sigma fx is equal to 0. Summation of the forces, horizontal forces, sigma fx equal to 0. You understand? अब ये आपकी फोर्स थी, जहां पे क्या फोर्स थी सिग्मा इंटू डी ए, राइट. और जहां पे आपकी फोर्स थी एट बी, मैंने लिखता हूं एट ए, क्या थी फोर्स? एट ए फोर्स थी आपकी सिग्मा इंटू डी ए, ये पहले भी लिखा है. एंड एट सेक्शन बी सिग्मा प्लस डी सिग्मा इंटू डी, राइट. अब देखिए ये दोनों फोर्सेस इस साइड पे हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं सिग्मा प्लस डी सिग्मा इंटू ए. दिस इज इक्वल टू दिस डायरेक्शन एंड दिस इज अपोजिट डायरेक्शन. तो समेशन ऑफ द फोर्सेस हम 0 कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कर लीजिएगा. दिस इज एफ प्लस सिग्मा इंटू डी ए. यू अंडरस्टैंड दिस? एफ प्लस सिग्मा इंटू डी ए, एफ प्लस सिग्मा इंटू डी ए. तो ये क्या आएगा? sigma into dA. So this is sigma into dA plus d sigma into dA. This is equal to F into sigma into dA. J और sigma into dA ये आपका कैंसिल हो जाएगा. You understand this? तो F क्या है आपके पास? Therefore F this is equal to d sigma into dA. You understand? So F this is equal to d sigma into d. जहां तक चीजें क्लियर है? अब देखिए तो F की वैल्यू हमने निकाल ली. यू नो द बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन, आपको जो बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन है दैट इज m अपॉन i, दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन i बाई, ठीक है ना. सो यू नो द बेंडिंग इक्वेशन एज पर द बेंडिंग इक्वेशन, जो आप बेंडिंग इक्वेशन जानते हैं वो क्या है? m अपॉन i सिग्मा अपॉन बाई. देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू m इंटू बाई अपॉन i, राइट. सिग्मा इज इक्वल टू m इंटू बाई अपॉन i. तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे जहां पे इस इक्वेशन है f इज इक्वल टू डी सिग्मा है ना, तो हम क्या लिखेंगे? डी सिग्मा की जगह बट वी विल राइट डाउन डी एम इंटू वाई, डी एम इंटू वाई अपॉन आई, राइट.
सो दिस इज जे आ गया डी सिग्मा की जगह डी एम इंटू बाई अपॉन आई इंटू डी ए। यू अंडरस्टैंड? जहां से चीजें क्लियर हो गई आपकी। So let us calculate the force per unit length. अब let us calculate the force per unit length. तो अगर मैं force per unit length, अगर आपकी dx is the length ना, dx क्या है? dx इसका लेंथ है जो मैं स्मॉल स्टिप का, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा? ये आपका जहां पे लिख लीजिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा F अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू dm अपॉन dx, dm अपॉन dx, इसको अलग कर लो, इंटू y अपॉन I इंटू dA। You understand? So this is the relation between the dm upon dx. This is the relation between the bending moment and shear force. ये आपका dm upon dx क्या है? This is the relation between the dm bending moment and shear force. तो ये आपका relation जो आपका dm upon dx है, आप कह सकते हैं this is the relation between the bending moment and shear force. तो dm upon dx, you can say this is S, this is equal to shear force, right? तो dm upon dx की जगह हम S लिख सकते हैं, that is shear force. ये आपका जो dm upon dx है, this is equal to shear force. Therefore, force per unit length, ये आ गया आपका force per unit, force per unit length, this is equal to S, dm upon dx, this is S into y upon I into dA, right? ये आपका आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब देखिए, दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ we have calculated for this only small portion. ये सिर्फ हमने स्मॉल पोर्शन के लिए कैलकुलेट किया है फोर्स पर यूनिट लेंथ। इफ आई विल टेक द इंटायर बीम, अगर मैं ये सारी इंटायर बीम लेता हूं, तो इंटायर बीम तो क्या करूंगा मैं? आई विल इंटीग्रेट दिस, दिस इज फॉर द स्मॉल लेंथ dx, and if I will consider the entire beam, I will integrate this. You understand? ये जो इंटीग्रेट करेंगे, दोनों पार्ट को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। Right? So we will integrate this, that is F upon dx. This is the integration of S into y upon I into dA. This is for the entire beam, right? If I have to calculate the horizontal shear for this entire beam, entire this portion means this entire ये जो आपका फ्लैंज है, इसके लिए मैंने फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे? मैंने तो इसके इसमें क्या था, एक छोटा सा ये लिया था, अब इंटायर बीम के लिए करना है, तो आई हैव टू इंटीग्रेट दिस। यू अंडरस्टैंड? तो इंटीग्रेट करके ये आपका रहेगा ये F अपॉन dx, ये S आपका कांस्टेंट है, शेयर फोर्स I कांस्टेंट है, और अंदर आ गया y इंटू dA। यू अंडरस्टैंड? दिस इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, y इंटू dA, दिस इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
f upon dx, this is equal to s into a by var upon I, a by var upon I। अब ये जो आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज डिनोटेड बाय Q एंड दिस इज कॉल्ड द shear flow, राइट। ये हम इसके साथ डिनोट करते हैं, Q के साथ डिनोट करते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं इस तरीके से लिख लीजिए, दैट इज Q इज इक्वल टू S A by var upon I। So Q is known as shear flow। You understand? तो ये आपका shear flow का जो इक्वेशन है, this is the equation of the shear flow। You understand this? What is Q? That is force per unit length, and this is called the shear flow। Q is the shear flow। अब just understand, we are studying about the horizontal shear, ठीक है ना। So horizontal shear and shear flow both are the same thing। You understand? horizontal shear और shear flow जो है ये दोनों सेम है। अब ये shear flow, how we can say, why it is said that it is called the shear flow, or how this horizontal shear, or how the horizontal shear, how the you can say shear flow is developed। ये तो जैसे मैंने आपको बताया था shear flow कैसे develop हुआ, this is due to the imbalance of the forces at the two different sections। two different sections के ऊपर, in case of this small thing, you have seen that there is the imbalance of the forces, and due to the imbalances of the forces, and in order to balance the forces, in order to balance the imbalances forces, there is a horizontal shear, there is a horizontal shear which is known as F, horizontal shear। वहां पे क्या हुआ, horizontal shear डेवलप हुआ। तो अगर मैं, ये आपका है, ये था, मैंने ये सब स्मॉल ये पार्ट लिया था, तो पूरा अगर इसका करें तो ये आपका ऊपर वाला पोर्शन है, ये तो स्मॉल पोर्शन था, ये पूरा एक ऊपर पोर्शन है। तो इस तरीके से आपका जो डायरेक्शन होगी शेयर फ्लो की, इट इज लाइक दिस। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका शेयर फ्लो हो गया एक फैलेंज लेंथ के ऊपर। अब देखिए, जस्ट अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से, ये जो पूरा क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में किस तरीके से आपका हॉरिजॉन्टल शेयर फ्लो जो है होगा, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसको अच्छे तरीके से आपको समझना है। आई हैव जस्ट टेकन ओनली दिस पोर्शन, पार्ट ऑफ द पोर्शन, दैट इज ये जो ऊपर वाला पार्ट था क्रॉस सेक्शन का, आई हैव जस्ट टेकन, और जहां पे हमने देखा कि दिस फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड दिस साइड, लेफ्ट साइड के ऊपर, तो ये मैंने इसको शो कर दिया यहां पे। अब नाउ अंडरस्टैंड, सो अभी इसको मिटा दीजिए आप। नाउ जहां तक तो चीजें सारी आपको क्लियर है। नाउ टू अंडरस्टैंड why it is, that is horizontal shear की बात कर रहा हूं मैं, why it is called shear, why it is called shear flow, ये जो आपका horizontal shear है, and what is the importance, इसका क्या क्या जरूरत थी। so you can say why we are calculating shear flow per unit length।
शेयर फ्लो क्या है एंड वाई वी आर, अभी डिस्कस करेंगे इसको, वाई वी आर कैलकुलेटिंग shear force, the horizontal shear per unit length, shear force, why we are calculating shear flow, not sorry, why we are calculating shear flow per unit length. ये दोनों चीजें अलग अलग we will discuss, right? ये दोनों हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड द शेयर फ्लो, ये फर्स्ट है। सेकंड, व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग द शेयर फ्लो पर यूनिट लेंथ। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द शेयर फ्लो, यू अंडरस्टैंड दिस। जहां पे देखिए आप, ये जो फ्लैंज था आपका, ये सपोज आपका फ्लैंज नंबर 1 है, राइट, ये पार्ट, तो जहां पे एज पर दिस, ये जो पार्ट था, ओनली दिस पार्ट आई हैव टेकन एंड द फोर्स एफ इज एक्टिंग लाइक दिस, ऊपर वाले पार्ट में ये फोर्स जहां पे इस तरीके से चलेगी फॉर द एंटायर लेंथ, यू अंडरस्टैंड। अब ये फोर्स जहां पे इस तरीके से चलेगी, ड्यू टू द कंप्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस, ध्यान से सुनिए, ड्यू टू द कंप्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस क्या होगा, जहां पर भी फोर्स इस तरीके से डेवलप होगी, ड्यू टू द complementary shear stress the force will develop, horizontal force will develop like this, right, you understand, you know the concept of the complementary shear stress। तो ये इस तरीके से ये जो फ्लैंज का ये वाला पार्ट है जहां पे इस तरीके से डेवलप होगी। अब देखिए, ये फोर्स आपकी जो है horizontal force, horizontal shear force, that is like this। तो ये जो आपका अपोजिट पार्ट होगा, इसके पीछे वाला पार्ट, ये वाला बैक वाला पार्ट, द फोर्स शेयर फ्लो इज लाइक दिस, राइट, इस तरीके से होगा, यू अंडरस्टैंड दिस। तो जहां पर ड्यू टू दिस कंप्लीमेंट्री शेयर फ्लो, अगर ये जहां पे इस तरीके से है तो इसका दिस इज द बैक साइड ऑफ दिस, और जहां पे इसका जो ड्यू टू कंप्लीमेंट्री ऑफ दिस, ये इस तरीके से होगा, यू अंडरस्टैंड, ये आपका हो गया। अब आ जाइए, दिस इज अपवर्ड पार्ट ऑफ दिस, नाउ कम टू दिस पार्ट। ये आपका जो ऊपर वाला पोर्शन था जहां पे अगर टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगी, राइट, तो नीचे ये जो पोर्शन है ये फ्लैंज का, जहां पे क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होंगे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस का मतलब है इट विल मूव लाइक दिस, राइट, it will move like this, and then magnetic compressive stresses will move like this, तो ड्यू टू कंप्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस ये आपकी इस तरीके से होगी, यू अंडरस्टैंड दिस। इसमें भी ड्यू टू कंप्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस ये ऐसे है तो ये ऐसे होंगी, और जो इसका अपोजिट पार्ट होगा उसमें फोर्सेस कैसे होंगी, इस तरीके से होंगी, राइट, उसमें फोर्सेस कैसे होंगी, इस तरीके से होंगी। एंड ये जो आपकी है ये ऐसे होंगी,
इसका ड्यू टू कंप्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस इट विल फ्लो लाइक दिस, यू अंडरस्टैंड। ये आपका हो गया फ्लैंक पोर्शन के ऊपर कि आपका किस तरीके से शेयर फ्लो होगा, इसको आप दोबारा अंडरस्टैंड कीजिएगा। जे पार्ट का तो हमने यहां से फाइंड आउट किया था, इसका जो डायरेक्शन आपने देखा दिस इज अप टू लेफ्ट साइड के ऊपर, तो जे फोर्स आपकी हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स जे इस तरीके से इस पार्ट के ऊपर होगी, एंड ड्यू टू द कंप्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस व्हाट हैपेंस, जे जो वाला 90 डिग्री के ऊपर जे जो वाला पोर्शन होगा, इस पोर्शन में इसका जो शेयर हॉरिजॉन्टल शेयर का फ्लो होगा इट इज लाइक दिस, दिस इज एज शोन इन द फिगर। अब नाउ कम टू दिस, ऊपर वाला जो बैक पोर्शन है, अगर जे फोर्सेस इस डायरेक्शन में है तो जे बैक पोर्शन है तो इसका जो फोर्सेस होगा वो आपका क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दिस इज इन द अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यू अंडरस्टैंड दिस, एंड जो ड्यू टू कंप्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस दिस फोर्स विल फ्लो लाइक दिस। ये पोर्शन आपका क्लियर हो गया। नाउ कम टू दिस, अगर जहां पे ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, जहां पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाले पोर्शन में आपकी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी, ऊपर वाले पोर्शन में कौन सी स्ट्रेस डेवलप होगी, दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेस दैट विल डेवलप, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें आपकी क्या होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका इस तरीके से होगा और ये आपका इस तरीके से होगा, जहां तक चीजें आपको क्लियर है। नाउ कम टू दिस, ये वाला वेब वाला पोर्शन, जो वेब पोर्शन की बात करते हैं हम, so let us now understand the shear flow in the web part। ये जो पार्ट है इसमें देखेंगे शेयर फ्लो कैसे होगा। अब देखिए ये वाला जो पार्ट था आपका, ये वाला जो पार्ट था इसमें नीचे वाला ये आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लाइक दिस, राइट। इसका मतलब ये जहां से जो वेब फ्लैंज के साथ अटैच हुआ है, ये वाला पोर्शन जहां पे जो वेब जो है फ्लैंज के साथ अटैच हुआ है, तो ये भी आपका क्या होगा, इस तरीके से होगा, यू अंडरस्टैंड दिस, शेयर फ्लो लाइक दिस। नाउ ड्यू टू द डिफरेंस इन द बेंडिंग स्ट्रेसेस, अगर जहां पे बेंडिंग स्ट्रेसेस का डिफरेंस है तो जहां पर भी क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस का डिफरेंस होगा, एंड ड्यू टू द डिफरेंस इन द बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होगा, ये शेयर फ्लो आपका इस तरीके से होगा। इसमें ये जो पोर्शन है जहां पे आपको दिखाई नहीं देगा, इसको मैंने काट के सेपरेट किया है, इट विल लाइक दिस, राइट, इट विल लाइक दिस, ये आपका पोर्शन इस तरीके से होगा, और ये आपका जो पोर्शन है ड्यू टू द कंप्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस इट विल लाइक दिस, राइट, सो इट विल लाइक दिस। तो जहां से आपका ये वाला ये इस तरीके से ये इस तरीके से शेयर फ्लो, यू अंडरस्टैंड दिस। सो इफ यू विल सी द डायग्राम ऑफ दिस, अगर आप ये इस डायग्राम में देखें, सो हेयर यू विल come to know that horizontal shear that is going from one part to another part, you understand,
आप जहां पे देखिए जो हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स है, इट इज गोइंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड और वन पार्ट टू अनदर पार्ट एंड इट इज फ्लोइंग लाइक दिस। देखिए ये इस तरीके से फ्लो कर रही है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द शियर फ्लो। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शियर फ्लो। सो दिस इज कॉल्ड शियर फ्लो। यू अंडरस्टैंड दिस? जहां तक चीजें क्लियर हो गई कि किस तरीके से आपका शेयर फ्लो मेंटेन होगा, दोबारा देखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द शेयर फ्लो विल टेक प्लेस हियर। जस्ट सी हियर, दिस इज द पार्ट जहां पे हॉरिजॉन्टल शेयर इस तरीके से होगा, राइट। एंड ड्यू टू द कंप्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस, तो इस पोर्शन में भी क्या होगा, शेयर फोर्स डेवलप होगी, शेयर फ्लो डेवलप होगा या हॉरिजॉन्टल शेयर डेवलप होगी and it will develop like this, right? Now come to this part। ये अगर जहां पे इस डायरेक्शन में है तो इसका जो ये होगा, इसमें फोर्सेस आपकी क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। इट इज लाइक दिस एंड ड्यू टू दिस हॉरिजॉन्टल शेयर, अगर ये आपका इधर फ्लो करेगा तो ये हॉरिजॉन्टल शेयर से ये आपकी इस तरीके से ये जहां पे एज शोन इन द फिगर इसका जो फ्लो होगा, इट इज लाइक दिस। ये हो गया फ्लैंज 1 का। अब फ्लैंज 2 के ऊपर आ जाइएगा। दिस इज योर फ्लैंज 1। दिस इज ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जहां पे कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी, टेंसाइल फोर्सेस। ये आपका बीम है, जहां से देखिए बीम है और बीम के ऊपर आपका लोड जो है इट इज एक्टिंग एट द फ्री एंड। तो जो आपका बेंडिंग मूवमेंट होगा, इस तरीके से आपका बेंडिंग मूवमेंट होगा, इस तरीके से आपका बेंडिंग मूवमेंट होगा। तो बेंडिंग मूवमेंट में यू हैव सीन दैट जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां पे बेंडिंग स्ट्रेस टेंसाइल होगी और जो नीचे वाला पोर्शन होगा वहां पे कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस होगी, राइट। तो जहां पे अगर ये आपका टेंसाइल है तो ये आपकी कंप्रेसिव है। यू अंडरस्टैंड? ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा और जहां पर ड्यू टू द कंप्लीमेंट्री शेयर ये आपका शेयर फ्लो इज लाइक दिस। अब ये इसका अपोजिट है, अगर ये इस तरीके से है तो ये इस तरीके से जाएगा और इसका कंप्लीमेंट्री शेयर्स दैट विल गो लाइक दिस। तो ये जो आपका जहां पे आप हॉरिजॉन्टल शेयर का जो आप फ्लो देख रहे हैं, इट इज फ्लोइंग लाइक दिस। इफ यू विल सी इन द डायग्राम, यू विल सी दैट हॉरिजॉन्टल शेयर इज फ्लोइंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, राइट। वो एक एंड से दूसरे एंड के ऊपर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। सो दिस इज कॉल्ड द shear flow, right? So this is called the shear flow। और shear flow का क्या है, shear flow को हम Q से डिनोट करते हैं, means that is force per unit length, right? And this is equal to, ये किसके बराबर हो गया, S upon I into by into dA, S by dA। S that is A by bar upon I। This is here, you understand? तो shear flow का concept आपको समझ आ गया, why it is called shear flow, how it is moving from one part to another part, why it is developed। ये सारी चीजें हमने वन बाय वन आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दे दिया है। यू अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस, व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग shear flow per unit length, or you can say why we are calculating the shear flow। So let us understand now why we are calculating the shear flow। सो द सेकंड चीज के ऊपर आइए, व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग द शेयर फ्लो। पहला तो क्लियर हो गया शेयर फ्लो क्या हुआ है, दैट वी हैव शोन इन द डायग्राम। सो व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग द शेयर फ्लो, इट इज द इंपॉर्टेंस, और यू कैन से इट इज हैविंग द टू इंपॉर्टेंस। इससे हमें क्या है, हमें इसकी जो है इंपॉर्टेंस है, देयर आर टू सिग्निफिकेंसेस आर इंपॉर्टेंस ऑफ द शेयर फ्लो। तो दो जो हैं, यू कैन से देयर आर
two significances are importance of shear flow. तो इंपॉर्टेंस है, राइट। पहली इंपॉर्टेंस तो क्या है कि टू कैलकुलेट द शेयर सेंटर। पहला तो ये क्या है कि टू कैलकुलेट द शेयर सेंटर। हमें शेयर सेंटर को कैलकुलेट करने के लिए वी मस्ट नो द शेयर फ्लो। यू अंडरस्टैंड? To calculate the shear center, or you can say location of the shear center location. फर्स्ट इंपॉर्टेंस तो ये है इसका। अब सेकंड इंपॉर्टेंस इसकी ये है, टू अंडरस्टैंड द सेकंड इंपॉर्टेंस वी मस्ट नो अबाउट द बिल्ट अप बीम। हमें बिल्ट अप बीम के बारे में फर्स्ट वी मस्ट नो दैट वो हमारी बिल्ट अप बीम्स क्या होती हैं। सो यू कैन से, पहले तो हम इसका बिल्ट अप बीम के बारे में पढ़ेंगे। बिल्ट अप बीम of beams. So what is the built up beams? You know that thin walled members, just like I section, E section, you can say C section, L section, right? So all these are built up beam. Means these beams, if you can say I am taking the wooden structure here, so if I will talk about the I section, I section beam की बात करता हूं मैं, if it is a wooden structure, ये beam जो है, you cannot make this beam at a single piece. आप इस beam को क्या है, अगर आपका क्रॉस सेक्शन I section है तो आप इसको सिंगल बीम नहीं बना सकते हैं। सपोज दिस इज योर I section क्रॉस सेक्शन, तो जहां पे देखिएगा ये आपका सिंगल पीस नहीं होगा। मींस आपको आई सेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको फ्लैंज बनाना पड़ेगा, देन बी यू हैव टू मेक दिस बैक पार्ट एंड देन ब्लेंड, देन अगेन फ्लैंज, एंड देन यू हैव टू फिक्स दिस पार्ट with the help of nail or glue, right? So this likewise if you will talk about the T section, तो T section में भी क्या होगा, पहले first you will frame the phalange and then आप उसका बैक पार्ट बनाएंगे और उसके बाद उसको आप क्या करेंगे, अटैच करेंगे, फिक्स करेंगे, नेल के साथ करेंगे, ग्लू के साथ करेंगे, जैसे भी करेंगे तो इस तरीके से। So you can say that I section, T section, L section or C section, so all these are the built up beam. Means they are not made of single structure, they are not made of the single structure, they are made of the different type of the structures, and then we have to you can say connect these part with the help of the nail or glue. You understand that? अब देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ, हमने फोर्स जहां पे हम फोर्स पर यूनिट लेंथ लेते हैं, राइट? शियर फ्लो क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। व्हाई वी विल कैलकुलेट दिस, ये जो सेकंड सिग्निफिकेंसेस का हम करेंगे। सो दिस इज योर आई सेक्शन, ये आपका आई सेक्शन है। तो आपने आई सेक्शन को बनाना है जहां पे, तो देखिए इस तरीके से आप इसको अटैच करेंगे। ये नेल है, ये नेल है आपका, राइट? जहां पे नेल है इस तरीके से नेल लगाएंगे, राइट? तो यू हैव टू फिक्स दिस डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये जो आपने वुडन स्ट्रक्चर बनाया था, तो ये इस तरीके से यू हैव टू फिक्स द नेल। इफ आई से दैट द डिस्टेंस जहां से लेके जहां तक, जो इसका डिस्टेंस है वो क्या है, x है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू नेल्स, यू कैन से दैट, या तो हम इसको ग्लू के साथ क्या कर सकते हैं, ग्लू के साथ हम इसको फिक्स करेंगे। ये जो पार्ट्स हैं आपके वुडन स्ट्रक्चर के,
डिफरेंट डिफरेंट पार्ट और अपना एक क्रॉस सेक्शन बनाना है, आई सेक्शन बनाना है, डी सेक्शन बनाना है, तो उसको करने के लिए या तो हम विद द हेल्प ऑफ द नेल्स वी विल कंस्ट्रक्ट दैट पार्ट, और जहां हम ग्लू के साथ करेंगे। तो अब नेल जो होगा तो एट सम डिस्टेंस वी हैव टू फिक्स द नेल। सपोज इफ आई से दैट द डिस्टेंस बिटवीन द नेल दैट इज गिवन एज x, राइट। अब चक्कर यह है कि हम फोर्स पर यूनिट लेंथ किस लिए लेते हैं। देखिए आपने जहां पे नेल लगाया तो देन वी हैव टू सी कि ये जो इस नेल के ऊपर जो फोर्स होगी, कितनी टोटल फोर्स उसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर एक्ट करेगी, कितना क्रॉस सेक्शन के ऊपर उसके क्या होगा, लोड होगा, सो दैट कि हम नेल को इस तरीके से डिजाइन करें, उसके क्रॉस सेक्शन को इस तरीके से डिजाइन करें कि वो जो लोड होगा जो नेल के ऊपर एक्ट करेगा, वो लोड को क्या करे, सस्टेन कर सके। यू अंडरस्टैंड, उस लोड को बियर कर सके, उसका क्रॉस सेक्शन जो नेल का होगा वो फेलियर ना हो। यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये क्रॉस सेक्शन डिजाइन करने के लिए इफ वी हैव टू डिजाइन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द नेल, फर्स्ट वी मस्ट नो दैट हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द नेल। हमें ये मालूम होना चाहिए कि नेल के ऊपर कितनी फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है, एंड दैट can only be calculated if we know the force per unit length. You understand that? अगर हमें force per unit length जो क्या है, ये force per unit length क्या हो, ये आपका है S upon I A by bar, right? Force per unit length, we must know the force per unit length. तो आप क्या करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू विल कैलकुलेट, एंड यू नो द डिस्टेंस बिटवीन द टू नेल्स। जहां जहां भी आप नेल्स अप्लाई करेंगे यू नो दैट डिस्टेंस। सपोज इफ यू आर हैविंग द डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज x, तो फोर्स आपका कितना होगा, जो नेल के क्रॉस सेक्शन के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा दैट इज इक्वल टू q इंटू x। यू अंडरस्टैंड दिस, ये चीज समझ आई कि फोर्स पर यूनिट लेंथ हम शेयर फ्लो क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हमारी जितनी भी बिल्ट अप बीम्स हैं वुडन स्ट्रक्चर में, अगर बिल्ट अप बीम को हमें बनाना है तो एट ए वन स्ट्रक्चर तो वो बिल्ट अप बीम नहीं बनेगी। अगर आपका आई सेक्शन है तो उसके लिए आपको फ्लैंज जो है सेपरेट बनाना पड़ेगा, वेब का पोर्शन सेपरेट बनाना पड़ेगा, और द इन को आपको नेल्स के विद द हेल्प ऑफ द नेल्स और विद द हेल्प ऑफ द ग्लू यू हैव टू फिक्स दीज पोर्शंस, तब जाके आपका आई सेक्शन, आई क्रॉस सेक्शन बनेगा। अब नाउ द क्वेश्चन इज, ये इसको हम फिक्स करने के लिए वी विल यूज द टू मेथड्स, आइदर वी फिक्स इट विद द हेल्प ऑफ द नेल या हम ग्लू का इस्तेमाल करते हैं। अब चक्कर ये है कि नेल्स हम जो लगाते हैं हमें तो ये पहले देखना है, सपोज करो कि नेल हम कितने डिस्टेंस के ऊपर लगाएं, टोटल फोर्स जो है इसके ऊपर कितना एक्ट करेगा। अगर सपोज करो हम नेल किसी एक डिस्टेंस हम फिक्स करते हैं कि x डिस्टेंस के ऊपर नेल जो है लगाते हैं टू जस्ट फिक्स द स्ट्रक्चर, इसको जोड़ने के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द नेल, कि नेल के ऊपर टोटल फोर्स कितना एक्ट करेगा, दैट फर्स्ट वी मस्ट नो दैट। ये तभी हमें पता चलेगा, अगर हमें उसका पता होगा तो ओनली देन वी कैन डिजाइन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द नेल, कि हमें जहां पे जो नेल इस्तेमाल करना है वो किस क्रॉस सेक्शन का हमारा नेल होना चाहिए। अगर उसका डिजाइन जो है अकॉर्डिंग टू द फोर्स पर यूनिट, फोर्स जो है डिजाइन उसका नहीं होगा तो क्या होगा, देयर विल बी द फेलियर ऑफ द जॉइंट देयर, जो अपना आई सेक्शन जॉइंट बनाया है वहां पे क्या होगा, फेलियर हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, यू कैन से दैट टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन द नेल वी मस्ट नो फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो हमने हॉरिजॉन्टल शियर का जो जहां पे हमने ड्राइव किया फार्मूला, दैट इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंड इफ यू आर हैविंग द length between the two nails, say x, say y, say 10 centimeter, 5 centimeter, like this, whatever it is, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ आपके पास है,
जो आपका डिस्टेंस होगा बिटवीन द टू नेल्स, उस डिस्टेंस के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करिए और आपको फोर्स मिलेगा। वो फोर्स मिलेगा कि जो फोर्स आपके नेल के ऊपर एक्ट करता है, और उसी हिसाब से देन वी हैव टू डिजाइन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द नेल सो दैट इट विल सस्टेन दैट लोड, इट विल सस्टेन दैट force. You understand the significance of this, why shear flow को हम force per unit length के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। What is the importance of the shear flow? Now you understand, because the shear flow, that is the force per unit length. And what is the importance of this? पहला तो importance आपको बताया था, this is to use to measure the location of the shear center. And the second one, अच्छा, इसी तरीके से अगर आपने ग्लू से आप इसको जो है, ग्लू क्या है, ग्लू से आप इसको क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, जहां पे ग्लू से आप इसको फिक्स करना चाहते हैं, तो ग्लू में भी क्या होगा, सपोज करो एक ग्लू आपने इस्तेमाल करना है, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, यू अंडरस्टैंड, तो उसको आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ जो आपको पता होगा ग्लू का, उसे आप x से मल्टीप्लाई कीजिए और आपको उस अगर 100 mm है तो आपको पता लग जाएगा कि 100 mm जो जगह है, जो 100 mm स्पेस है, उसमें कितना ग्लू हमारा इस्तेमाल होगा। यू अंडरस्टैंड? सो दीज आर द टू इम्पोर्टेंस ऑफ द शेयर फ्लो। आज जो लेक्चर था ये आपका, अभी हम शेयर सेंटर के ऊपर नहीं पहुंचे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आई विल टेक 2 लेक्चर ऑफ दिस, क्योंकि इसको डिटेल में और अच्छे तरीके से हर चीज को पढ़ाने के लिए, अदरवाइज शेयर सेंटर आज भी करवा सकता था, आगे इसके कोई ज्यादा लंबा नहीं है। मेन चीज जो आपको अंडरस्टैंड करने वाली थी वो यही थी कि हॉरिजॉन्टल शेयर क्या है आपका, शेयर फ्लो क्या है, हॉरिजॉन्टल शेयर क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्यों हम ड्राइव इसका कैलकुलेट करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। यू अंडरस्टैंड? So my first lecture of this topic shear center, this is over today, and next part of the lecture you can say that is in the shape of another lecture, वो आपका next part होगा। इसमें अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स भी इसके साथ करेंगे, जैसे ये मैंने नेल्स का जो आपको बताया है, तो इसकी प्रैक्टिकल implications को समझने के लिए we will solve 1 or 2 problem and then we will go the other part, जो इसका शेयर सेंटर क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल टुडे, सो थैंक यू वेरी मच।